Good morning, students. Today's class, chapter 4, Tick, Tick, Tick. In last class also, we learned about the same chapter. In the beginning of this chapter, we discussed about 60 seconds equal to 1 minute, 60 minutes equal to 1 hour, 24 hours equal to 1 day, full day. Then 7 days equal to 1 week, 30 or 31 days equal to 1 month, and there are 20 or 29 days in month of February, and 365 days or 366 days equal to 1 year. After that, we learn how to draw the hands in given clock to show given time. आपके पास जो कुछ क्लॉक दिया है, तो क्लॉक में जो टाइम बताया है कि वो टाइम दिया हुआ टाइम, गिवन टाइम, हाउ टू शो बाय ड्रॉइंग योर बोथ हैंड्स. बोथ हैंड मीन्स व्हाट? लॉन्ग हैंड्स एंड शॉर्ट हैंड. एज यू नो, लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड्स. इट इज यूज्ड टू रीड मिनट, and short hand it is used to read our time. Okay, so see, in the continuation of same questions, today here are some questions. Today, read this question. Show the following time in the clock. आपके सामने आज भी यहाँ पर कुछ क्लॉक दिए बेटा. इस क्लॉक में नीचे टाइम दिया है. Now we have to show this time by drawing hands. So see, clock number 1, what is time? It is 6 o'clock 45 minutes. 6 o'clock 45 minutes. So see how to show. To show these 45 minutes, we have to draw long hands. It is called minute hand. So beta, when your minute hand will be here, then from here to here it will move here. It is 5 minutes. Then 10 minutes, 15 minutes, 20, 25, 30, 35, 40, and see, it is 45 minutes. So this way, we can show here 45 minutes. We can show 45 minutes by drawing these minute hands on 9. अब हमें यहाँ पर minute hands का ड्रॉ करना पड़ेगा. Here we have to draw this minute hand on 9 only. So see. Okay, see. Next, अब see, it is on 9 minute hand. Then what about this 6 hour hand? कहाँ पर होगा बेटा? आपका जो शॉर्ट हैंड है, hour hand है, वो कहाँ पर होगा? Where it will be? It is 6 o'clock 45 minutes. Means it is 6 o'clock 45 minutes क्रॉस हुआ है, आगे गया है. 6:45 मिनट्स आगे निकल गया है. तो डेफिनेटली ये जो आपका आवर हैंड है बेटा, इट विल नॉट ऑन 6, वो 6 पर नहीं रहेगा. वो भी क्या होगा, थोड़ा सा आगे मूव करेगा, एंड इट विल बी रीच अबाउट नियर अबाउट 7. वो 7 के आसपास पहुंचेगा. व्हाई इट विल बी रीच टू द 7? वो 7 के पास क्यों पहुंचेगा बेटा? बिकॉज आफ्टर 15 मिनट, देखिए फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी 50, 55 एंड 60. देन इट विल बी 7 o'clock. तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका 7 o'clock हो जाएगा. मीन्स अभी 7 o'clock होने के लिए आपके पास 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट बचे हैं. सो इट विल बी नियर टू 7, नॉट एग्जैक्टली ऑन 7. 7 पर नहीं होगा, इट विल बी नियर टू 7. सो दिस इज टाइम नाउ 6 o'clock 45 minutes. It is time to 6 o'clock 45 minutes. Now see this. It is 1 o'clock 35 minutes. Now again start from here. From here 5 minutes, 10, 15, 20, 35 and 35. See 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. So it is long hand, minute hands. Now our hand, the short hand है, it will be in between of 1 and 2. ये कहां पर होगा बच्चों? इट विल बी इन बिटवीन 1 and 2. ये 1 और 2 के बीच का होगा, आसपास बीच में होगा. बेटा whenever you will draw these hands, जब आप हैंड्स को ड्रॉ करेंगे, प्लीज टेक केयर दैट यू आर ड्रॉइंग योर लॉन्ग हैंड्स एंड शॉर्ट हैंड विथ प्रॉपर
डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लेके आपको ड्रॉ करना है. सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? आवर हैंड शुड बी शॉर्टर देन मिनिट हैंड. जो आपका आवर हैंड है वो हमेशा आपका मिनिट हैंड से शॉर्टर होना चाहिए. इफ यू विल नॉट डू लाइक दिस, इफ देयर आर सम मिस्टेक इन योर लेंथ ऑफ द हैंड्स, देन डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग. वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आवर हैंड्स अगर आपने लॉन्गर कर दिया मिनिट हैंड से, फिर वो इट विल बी रीड एज मिनिट, वो मिनिट पड़ेगा. एंड देन मिनिट हैंड आपका अगर शॉर्ट हो गया इट विल बी रीड एज आवर, वो आवर पड़ेगा. So definitely your time reading will be wrong. So please take care to draw the hour hand always shorter than minute hand. Okay? ये बात ध्यान में रखिए आप लोग. Now number 3, it is 5 o'clock 10 minutes. So see, 10 minutes from here to here 5 minutes and then it will be 10 minutes. It is your long hand, hour hands. Now see, our long hand minute hands, this is minute hand and our long short hand होगा बेटा, it will be moved just up 5 minutes. 5 minutes से थोड़ा आगे, 5 से थोड़ा आगे जाएगा बेटा. ये क्या होगा? 5 से थोड़ा आगे होगा. Not more, just only little bit. थोड़ा सा ये it will be move to 5, move forward to 5. वो 5 के थोड़ा आगे चला जाएगा. Why? Because your minute hand has been moved 10 minutes forwards. तो 10 मिनट आगे निकल चुका है. So your hour hand it will be move forward little move forward of the 5. 5 से थोड़ा आगे निकल जाएगा. Now see, this is time is 5 o'clock 10 minutes. Now it is 11 o'clock 15 minutes. So from here to here 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes. चलिए 15 मिनट्स हुआ बेटा ये लॉन्ग हैंड्स. सेम वे आपका ये जो आवर हैंड्स है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था, ये आपका 5 के थोड़ा सा आगे गया था. सेम वे इट विल मूव फॉरवर्ड ऑफ द 11, लिटिल मूव फॉरवर्ड ऑफ द 11. ये थोड़ा सा 11 से आगे निकल जाएगा. सो दिस टाइम इज नाउ इट इज योर 11 o'clock 15 minutes. It is your 11 o'clock 15 minutes. Any doubt? So in this way we can draw the long hands and short hand to show given times. तो इस तरह हम जो भी टाइम दिया हुआ है इस टाइम को ड्रॉ शो करने के लिए लॉन्ग हैंड्स एंड शॉर्ट हैंड्स का ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? Draw where the hands will be. Again this clock or without hands. Here time is not given here. यहाँ पर बॉक्स बना के टाइम भी नहीं लिखा है. But we have to show the hands. So read this sentence. इस सेंटेंस को पढ़िए. What is this sentence? नंबर A सेंटेंस पढ़िए. What is this sentence? 20 minutes after 6 o'clock. 20 minutes after 6 o'clock मतलब ये 6 o'clock 20 मिनट पार हो चुके, 20 मिनट हो चुके आफ्टर 6 o'clock के बाद आफ्टर 20 मिनट्स. इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? इट्स मीन वेरी सिंपल. इट इज 6 o'clock एंड अगेन 20 minutes. It is 6 o'clock and again 20 minutes. Okay, so it is 6 o'clock 20 minutes. Now we have to show same thing. 20 minutes after 6 o'clock. So minute hands will move from here 5 minutes, 10 minutes, 15 and 20. Okay, like that your minute hand will be moved here 4 to 4. So it is 20 minutes. Now after 6 o'clock मतलब 6 o'clock हो चुके हैं. It means very clear that your hour hand will move after 6. तो 6 के थोड़ा आगे निकल जाएगा. तो देखिए 6 का थोड़ा सा आगे निकल गया, इस तरह का होगा. 6 के थोड़ा आगे निकल गया. सो इट इज 6 o'clock 20 minutes. It is 6 o'clock 20 minutes. Now question B.
10 minutes after 7 o'clock. अगेन सेम मीनिंग है बेटा यहाँ पर, इट इज 10 मिनट आफ्टर 7 o'clock. 7 o'clock होकर 10 मिनट हो चुके हैं. इसका मतलब अगेन इट इज व्हाट, इट इज 7 o'clock 10 minutes. Now show this time by using your hands. So again, see this is minute hands. From here to here 5 minutes, and from here to here it is 10 minutes. Okay? It is 10 minutes. Now 7 o'clock, it will be move of the 7. थोड़ा सा 7 के आगे जाएगा like this. It is 7 o'clock 10 minutes. It is 7 o'clock 10 minutes. Mean 10 minutes after 7 o'clock. 10 minutes after 7 o'clock. वो 7 o'clock के थोड़ा आगे निकल जाएगा. देखिए थोड़ा सा गलत हुआ बेटा यहाँ पर. Once more I want to repeat it. 10 minutes after 7 o'clock. तो कैसे होगा ये? 10 minutes after 7 o'clock मतलब क्या हुआ? It will be move here 10. From here to here 5 minutes. Here to here 10 minutes. Then it will be moved little forward of the 7. 7 से थोड़ा आगे जाएगा like this. So it is 7 o'clock 10 minutes. So this is short hand, hour hand. It is long hand, minute hands. Okay. Now question C. 30 minutes after 8 o'clock. 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock. तो आपका जो 8 o'clock है, 8 o'clock से 30 मिनट आफ्टर हुआ है, मतलब पार हुआ है. सो व्हाट इज दिस टाइम? इट विल बी 8 o'clock 30 minutes. It will be 8 o'clock 30 minutes. So where will be your minute hands? Long hands कहाँ होगा? From here to here 0 है यहाँ से. See like this, यहाँ से स्टार्टिंग होगा. तो from here to here it will be 5 minutes. 10, 15, 20, 25 and 30. So our minute hands will be on 6 only. आपका minute hands कहाँ होगा? 6 पर होगा. It will be exactly on the 6. Now what about our short hands, our hands? आपका our hands कहाँ पर होगा? कहाँ होगा वो? देखिए बेटा, ये जो minute hand 12 पर था, तो एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस पार किया उसने. 6 पर आया, 30 मिनट्स हुआ, मीन्स हाफ आवर हुआ. अभी ये जो आपका आवर हैंड है, ये जो पहले 8 o'clock 30 मिनट, तो ये 8 और 9 के बीच में रहेगा. मतलब ये भी आपका हाफ डिस्टेंस आगे जाएगा. तो 8 और 9 के बीच में हाफ क्या होगा? इन बिटवीन ऑफ 8 एंड 9. ओके. नेक्स्ट सी 15 मिनट्स बिफोर 5 o'clock. बेटा अभी तक आपने ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन में क्या देखा था? आफ्टर वर्ड सुना था आपने. आफ्टर. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज बिफोर. इसमें क्या लिखा है? बिफोर. सी 15 मिनट्स बिफोर 5 o'clock. मतलब 5 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, या 5 बजने से 15 मिनट पहले क्या टाइम होगा? व्हाट विल बी टाइम बिफोर 15 मिनट्स? 5 o'clock, 15 minutes to 5 o'clock. 15 मिनट बिफोर टू 5 o'clock. तो 5 बजने के लिए 15 मिनट पहले, मतलब 15 मिनट पहले वो टाइमिंग क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? तो 5 कब बजते हैं बेटा? 5 कब बजते हैं? आफ्टर 4. जब मिनट हैंड्स पहले देखिए, पहले आपका ये 4 o'clock है, लेकिन ये जब आवर हैंड से आपका ये 5 आने के लिए क्या होना चाहिए? ये मिनट हैंड आपका आगे 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60. यह आना चाहिए कि नहीं? तभी आपका ये 5 o'clock हो जाएगा. बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 5 o'clock. ये 5 o'clock नहीं हुआ है अभी. 5 o'clock के बिफोर 15 मिनट. तो बिफोर 15 मिनट देखिए, इट इज बिफोर 5 मिनट्स, before 10 minutes, and it is before 5 minutes, before 15 minutes. इसका मतलब हुआ आपका ये जो 9 जो मिनट हैंड्स है, इट विल बी ऑन 9, एंड ये जो आपका 5 o'clock के लिए
थोड़ा सा कम समय बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो इट आवर हैंड्स जो था पहले 4 पर था वो 4 से मूव होके आगे 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास आएगा. ओके, तो देन इट विल बी नियर अबाउट 5 एंड देन दिस टाइम कैन बी रीड एज 4 o'clock 45 minutes. It can be read as 4 o'clock 45 minutes. Now see, it is 15 minutes before 5 o'clock. 15 minutes before 5 o'clock. So this way we can show after minutes and before minutes by drawing our hands. So it is, don't worry beta, if question is different, just try to understand what is the meaning of questions. क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसको मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए. हो सकता है क्वेश्चन का वर्ड आपका डिफरेंट हो, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. See, it is about activities. Beta, in our daily life, every day we are doing different types of activities, no doubt. And do you think every activity takes some time? जो भी any action, any activity, any action, any work, whenever we do any kind of work, it always takes some time. So, now see, for example, some activities are here. Now we have to guess how much time it will take. वो कितना टाइम लेता है हम बात करेंगे. For example, how long does your school assembly take? तो बच्चों आपका जो स्कूल का असेंबली है, it will definitely take some time. Can you guess how long it will take? How does it take? वो कितना टाइम लेती है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर. Our assembly start about 7 o'clock. कितना स्टार्ट होता है बेटा? 7 o'clock and it end about 7:30 minutes. So what is, how many minutes are there in between these two times? तो इन टू टाइम्स के बीच में कितना मिनट्स है? 7 के बाद up to 30 minutes. So it is about 30 minutes. So it is about beta 30 minutes. Now number 2. What is number 2? How long is your lunch break? आपका जो लंच ब्रेक है वो कितना समय का होता है? तो याद कीजिए, your lunch time start about 10 o'clock and it's over about 10:35 minutes. Yes? So how many minutes are there in between these two time? Starting time and end time. इन दो टाइम के बीच में कितना मिनट्स है? 10 से 10:35. तो इट इज अबाउट 35 मिनट्स. It is about 35 minutes. Number 3. How long is your game period? आपका गेम जो पीरियड है वो कितने समय का है? How long is your game period? Any guess? बेटा, it is in our school it is about 40 minutes. It is about 40 minutes. तो आपका जो गेम पीरियड्स है वो आपका गेम पीरियड अबाउट 40 मिनट्स का होता है. अब इसमें स्टार्टिंग टाइम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अलग एवरी डे यूर गेम टाइमिंग इज डिफरेंट है ना. आपका अलग अलग डे का टाइमिंग सेम तो नहीं है. एवरी जैसे कि टिफिन टाइम एवरी डे स्टार्ट एट 10 o'clock, वैसे तो आपका गेम टाइम नहीं है. कभी फर्स्ट हाफ में होता है, कभी सेकंड हाफ में होता है, कभी सेकंड पीरियड में, कभी 7th पीरियड में. तो टाइम आर डिफरेंट. ओके, नाउ इट इज अबाउट 40 मिनट्स. एंड लास्ट क्वेश्चन, सी इज इट सेम एज ऑल अदर पीरियड? क्या ये आपका जो गेम पीरियड होता है ये गेम पीरियड आपका सभी पीरियड के जैसे सेम होता है? इज इट सेम एज ऑल अदर पीरियड? व्हाट इज योर गेस? यस. देखिए क्यों? यस, इट इज सेम एज ऑल इट इज सेम एज ऑल अदर पीरियड्स. ये क्या बच्चों? ये भी बाकी पीरियड की तरह सेम होता है. अब क्यों सेम होता है बेटा? क्या रीजन है? व्हाई इट इज सेम एज ऑल अदर पीरियड्स? यस, इट इज सेम एज ऑल अदर पीरियड्स. बच्चों ये क्यों लगता है आपको? व्हाई इट इज सेम एज ऑल अदर पीरियड्स?
क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका गेम पीरियड चलता है, हो सकता है दूसरे क्लास का कोई टीचिंग पीरियड हो, लेकिन जब बेल बजता है स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड का, पीरियड खत्म हुआ और पीरियड स्टार्ट हुआ, ये जो बेल बजता है सबके लिए तो एक ही बेल बजता है। तो जैसे जब उनका टीचिंग पीरियड खत्म होता है, इधर आपका गेम पीरियड खत्म होता है। तो इसीलिए सभी का जो पीरियड, बाकी जो अपना पीरियड का टाइमिंग है वो उसी बराबर आपका गेम पीरियड का भी टाइमिंग है। सो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, यस इट इज सेम एज ऑल अदर पीरियड्स। तो बच्चों आज की क्लास में यही था। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो क्लास वर्क है, इस क्लास वर्क को जो फोटो निकाल के मैं ग्रुप में दिया हूँ या देता हूँ, इस फोटो को देख के आप अपनी कॉपी में से वर्क को पूरा कीजिए। थैंक यू।